Okay, so I'm going to start the session, the online session, obviously for temporary basis. So till now we have studied about different IoT protocols, that is wireless protocols, and under this we will today we will discuss about RFID as well as cellular networks. Okay, so RFID. So what do you mean by RFID? Can anyone tell me what do you mean by RFID? Because we So radio. are use this term every time, RFID, that is radio frequency identification device. Okay, so in that case the technology that uses electromagnetic field to identify the object, so it use radio electromagnetic field to identify the objects. So in case of IoT, what are the uses of RFID? Suppose uh, television, okay, television and remote. If I am taking the example of remote, so you will see in front of the remote, there's a small terminal in every remote. Okay, a small terminal. That small terminal will use that electromagnetic field, that electromagnetic field which is generated through the devices. Suppose I am using a remote to control the AC, so for a particular distance that a remote will be activated or remote will be in working condition, and that range is the electromagnetic field generated by that AC. So in IoT devices, the whenever we are going to communicate with wireless objects, so every wireless objects will produces an electromagnetic field uh, around its space. So inside this space, if my remote, I am pressing any button of the remote, then the remote will control the AC through its functions. So RFID protocol used in IoT devices in such a way that it will activate it or it will work for a particular distance, that is 100 centimeter, that's a 10 centimeter to 200 meters. So whatever the electronics devices having the range of 10 centimeter to 200 meter electromagnetic field, or the electronics devices which produces the electromagnetic field which ranges from 10 centimeter to 200 meter, then my the IoT devices will control that electronics component or control that smart component using RFID protocols. So in this RFID protocols, the very much common RFID devices is RFID RC522. That is the डिवाइस, दैट इज आर्डिनो डिवाइस जैसा होता है, या आरएफआईडी डिवाइस का मॉडल है RC522. दैट इज द मोस्ट commonly used devices which is applicable to control the IoT based devices through RFID. Okay, so now ये RFID क्या है? RFID nothing but this RC522 क्या होता है, ये तुम्हारा आर्डिनो कंपेटेबल है, आर्डिनो कंपेटेबल प्लस इसमें क्या रहता है, रास्पबेरी पाई
compatible module है. So by using this RFID module, we can connect any Arduino compatible devices or Arduino compatible IoT devices or Raspberry Pi compatible devices with that remote. So RFID module is one of the module which is used to control your IoT under wireless protocol. Next is cellular. And hope cellular जो term है, we all know about this. What do you mean by cellular? What do you mean by cellular? Anyone? What do you mean by cellular? Circular area network. Circular. Any other views from anyone? What do you mean by cellular? Any other views? Mobile network. Mobile. So why it is known as cellular? कभी दिमाग में आया क्यों इसको सेलुलर कहते हैं? देखो मैंने एक यहाँ पे वायरलेस सेल जैसे राइट. सो सर वायरलेस कनेक्टिविटी वायरलेस कनेक्टिविटी प्लस वो तो है, उसके लिए वो मोबाइल फोन कहते हैं क्योंकि वो मोबाइल है, कंपेटेबल मूवेबल. सेलुलर इसीलिए कहा जाता है जो मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स. सो देखो मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है, बहुत सारे सेल्स बना हुआ है. ये नथिंग बट अ पर्टिकुलर एरिया है और पर्टिकुलर एरिया में एक मोबाइल टावर बैठा हुआ है. ठीक है. सो पर्टिकुलर टावर ये पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगा. सो दैट इज द एंटायर रीजन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स and the entire mobile phone or your mobile device will work under these cells. सो अगर कोई भी सेल में मेरा टावर नहीं है, सपोज यहाँ पे मेरा टावर नहीं है, नेटवर्क कवरेज के लिए कोई टावर नहीं है, so whenever I will place the mobile phone in this region, obviously mobile phone will not work. So since its primary concept is totally dependent on the number of cell, that is cell, this each block is known as cell. So that's why it is mobile phone is also called a cellular device. That is, its working principle is totally dependent upon the cell. And in each cell we have a tower, or I can say we have a network provider. Tower is basically is a क्या बोलते हैं उसको, मोस्टली यूज टर्म बट वी विल नॉट यूज दैट टर्म टावर. ठीक है. इट इज अ not technical term, we will see a network provider. So in each cell there is a network provider, and the network provider will assure that your device will work under this particular cell by using the particular network. Okay, so that's why whenever we are going to connect any IoT devices like your ACs, your mobile phones, your IoT devices, AC, hospital, smart house, home appliances through mobile phone, then we will use the GSM concept. So, can you tell me what do you mean by GSM? फ्लेक्सिंग. हाँ, GSM? कोई भी चीज को सर ये That is, GSM is the system which is used by every mobile phones. That is global system for mobile phones, mobiles. ठीक है. तो that means अगर मुझे GSM कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, GSM कनेक्टिविटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे मेरा एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा. सिम कार्ड.
ठीक है। सो जब भी हम कोई आईओटी डिवाइस को सेलुलर डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे या कंपैटिबल करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थ्रू जीएसएम कनेक्शन we have to connect that IoT device with the module. ठीक है। Then what we will do? We are going to send the message to that particular SIM card. That is, every SIM card has IMI number, and this IMI number पे मैं अगर कोई मैसेज भेजूंगा, that message will be directly accepted by the IoT devices through that SIM card. Like हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट या बहुत ही पॉपुलर IoT डिवाइस हम लोग देखें, दैट इज योर स्मार्ट नोटिस बोर्ड। ओके, स्मार्ट नोटिस बोर्ड। स्मार्ट नोटिस बोर्ड। तो स्मार्ट नोटिस बोर्ड में क्या होता है? whatever you want to display on the notice board, ठीक है, just notice board is connected to the Arduino, and that Arduino is collaborated with your SIM slot or SIM card slot, and that SIM card slot is controlled by the cellular network, and whenever you are going to network provider, and if from your mobile phone, ये तुम्हारे पास जो मोबाइल फोन है, यहाँ पे तुम अगर कुछ टेक्स्ट करते हो और उसको अगर इस नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू ये सिम कार्ड पे भेजते हो, एंड दैट मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन दिस स्मार्ट नोटिस बोर्ड. So this function is totally dependent on the सेलुलर नेटवर्क. अगर सपोज मैं अपना नोटिस बोर्ड को एक ऐसे जगह पे इंस्टॉल करूं जहां पे मेरा नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क प्रोवाइडर अपना जो टावर है वहां पे इंस्टॉल नहीं किया है, तो क्या होगा? व्हाट एवर आई एम सेंडिंग टू द मोबाइल फोन, दैट message never be displayed on that particular notice board, and that's why this smart notice board is highly recommended through connection through highly recommended to be connected through GSM network, and GSM network means your cellular network. So that wireless protocol where a GSM network will be involved to connect the IoT device with your mobile phones or tablets or smartwatch, then that network protocol is known as cellular network. And ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, सर इसको हम क्यों यूज करते हैं? वाई वी विल यूज दिस? ठीक है। तो कोई भी चीज हम लोग यूज करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज, बिकॉज यूजिंग जीएसएम नेटवर्क इन योर आईओटी डिवाइस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक सिम कार्ड स्लॉट और नेटवर्क प्रोवाइडर का इन्वॉल्वमेंट है, और जहां पे मेरा सिम कार्ड और नेटवर्क प्रोवाइडर का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक आईओटी सिस्टम के लिए जो मेरा सेलुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसके लिए अलग अलग सिम कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, yes or no? Yes, sir. Okay, so to buy a new SIM card for a new IoT device, I don't think it is a very easy step, because everybody knows that our SIM card is directly taking the information regarding our Aadhaar card or voter ID card. So obviously we will not waste a SIM card on a IoT devices, because ये पता नहीं कि मेरा वो IoT device आज मेरे पास है, कल किसी और के पास ना जाए, और किसी और के पास अगर चला गया, they can access the SIM card. So if I will use that IoT devices which is connected through our smart devices like watch, mobile phone, tablet, computer, so we have to take care that the security of that device, because loss of device may not matter much, but loss of SIM card will matter a very big issue in future.
ठीक है but instead of this I am using smart notice board in most of the cases because range रेंज दुनिया के किसी भी कोने पे तुम रहो, ठीक है, अगर तुम्हारा आईओटी डिवाइस नेटवर्क प्रोवाइडर के अंडर है और वहां पे सिम कार्ड लगा हुआ है तो यू कैन मैसेज ऑन दैट नंबर एंड द मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। सो इट्स रेंज इज वेरी हाई एंड इट इज नियरली अबाउट 900 टू 2100 मेगाहर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये जितना भी सिग्नल है उसको हम सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्मार्ट नोटिस बोर्ड। लाइक सपोज टुडे आई विल नॉट गोइंग टू टेक योर क्लास एंड यू आर सिटिंग ऑन द classroom where a smart notice board is fixed, ठीक है। So and I am in, let it be I am in Kolkata and your college is in Dumka, so obviously for me it is not possible, quite possible to inform every student by phone call, okay, and let it be I am not using WhatsApp, let it be. So now what will I do? I have to show my message that I am not able to take your class on the notice board. So what should I do? So I have to message the particular SIM number, message to the particular GSM number which is provided by the SIM, so that I am not able to take today's class. So that will message directly displayed on your notice board. So range, look at the range. The range is very high. So that's why we are taking and this cellular network in IoT device is one of the most popular one. Like तुम देखोगे कि कहानी मूवी देखे हो? हेलो, Yes, sir. वहां पे क्या नहीं होता था, देखे सर। जैसे ही तुम्हारा लैपटॉप ऑन होता था देखोगे वहां पे एक कैरेक्टर था, उसके मोबाइल पे डिस्प्ले आ जाता था कि योर लैपटॉप हैज बीन ओपन और समवन इज गोइंग टू लॉग इन इनटू योर लैपटॉप, ठीक है। तो ये किस तरह से होता था, अगर हम आईओटी डिवाइस यूज नहीं करते तो क्या होता था, ऑब्वियसली आई विल नॉट गेट दैट मैसेज। सो whenever my laptop is switched on or someone else are trying to switch on my laptop, तो क्या हो रहा था, the laptop is connected to the particular network provider। देखोगे कुछ कुछ लैपटॉप में क्या होता है, सिम कार्ड स्लॉट रहता है। सो आई एम गोइंग टू पुट द सिम टू द लैपटॉप इनसाइड द लैपटॉप एंड give the setting that if someone including me someone is going to switch on the laptop or if लैपटॉप अगर स्विच ऑन होगा तो ऑब्वियसली सिम स्लॉट भी एक्टिवेट होगा। सो इफ समहाउ द सिम स्लॉट इज एक्टिवेटेड देन मैसेज विल बी डिस्प्लेड टू माय मोबाइल फोन। तो वो क्या करता था, लैपटॉप जैसे ही स्विच ऑन होता था क्या होता था, सिम स्लॉट एक्टिवेट होता था, सिम स्लॉट क्या करता था, एक ऑटो जनरेटेड मैसेज मेरे मोबाइल पे भेजता था। दैट मींस उस कैरेक्टर के मोबाइल पे भेजता था एंड द कैरेक्टर विल एवर दैट his laptop is accessed by someone else, because अगर वो खुद लैपटॉप ऑन करता तो ऑब्वियसली उसको वो मैसेज आता है एंड ही नो दैट he is the one who is going to operate the laptop। so obviously this IoT system depending on cellular is very much used where high security will be there। लाइक अगर तुम्हारे घर में, ठीक है, तुम्हारे घर में स्मार्ट लॉक है एंड स्मार्ट लॉक सपोज मैं मुझे क्योंकि देखोगे स्मार्ट लॉक इज द नथिंग बट वेयर यू कैन लॉक विथ योर पैटर्न एंड नंबर्स, ठीक है। सो इट इज वेरी हार्ड टू अनब्लॉक इट और इट इज वेरी हार्ड टू हैक इट, but I am not saying it is impossible to hack it। So somehow if someone hacked that pattern, how you will know? So instantly whenever someone is trying to open your house, ठीक है, with different trying different patterns, a message will be distributed, a message will be sent to your mobile phone through that smart lock। Okay, someone is going to try to use different patterns on your mobile on your smart lock and be aware।
or contact the nearest police station. So that is the main purpose of using cellular protocol in wireless cellular protocol in IoT devices. That is main thing is, first of all thing is range. इसका जो रेंज है, नेक्स्ट है तुम्हारा सिक्योरिटी, हाईली सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट इज NFC. So NFC, that is near field communication. NFC, NFC, near field communication. दिस इज ऑल्सो वायरलेस प्रोटोकॉल। और क्लास में मैंने एक बार इंफ्रारेड का तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था, यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, वहां पे मैंने क्या कहा था, दोनों मोबाइल एकदम पास में यूज होता है, ठीक है। सो नाउ नियर फील्ड कम्युनिकेशन का भी कॉन्सेप्ट कुछ सेम है कि तुम अगर अपने पास एकदम पास में कुछ कम्युनिकेटर रखोगे और वहां से कुछ डिवाइस से अपने डिवाइस से उसको कैप्चर करोगे तो दे कैन बी कनेक्टेड। हम लोग ये चीज करते आए हैं, ठीक है। कभी ना कभी इवन हम लोग कोई ना कोई इस चीज को डेली करते हैं। पूछो कैसे? सपोज यू आर गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यूज आर यूजिंग कैश नाउअडेज? तुम लोगों में से कितने हो जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हो किसी दुकान में? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यूजेस कैश? ओके ओके ओके, एंड बाकी सब? ओके, cash online sir both. ऑनलाइन, सर, दैट इज दोनों। ऑनलाइन। अब देखो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किस में करते हो? यूपीआई कोड स्कैन करते हो या कैश में करते हो? ऑब्वियसली नाउअडेज आफ्टर दैट पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग यूज टू हो चुके हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, दैट मींस कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, दुकानदार क्या करता है, ही विल प्रोवाइड अ क्यूआर कोड एंड हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल के कैमरा को क्यूआर कोड के तरफ लेके जाते हैं, स्कैनर को, एंड इट विल स्कैन एंड द मनी हैज बीन ट्रांसफॉर्म or has been transferred from your account to the account of that particular merchant. So that QR code is not is not displaying any banking information to you. वो सिर्फ क्या करता है, क्यूआर कोड क्या करता है, वो जनरेट करता है एक यूपीआई आईडी। सो बाय यूजिंग दिस यूपीआई आईडी क्या करता है, ये यूपीआई आईडी मैं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से मैं अगर इसको स्कैन करूं, सपोज तुम लोग अभी दुमका में हो, कोई अपने घर में है, देवघर में है, कोई जामताड़ा में है, एंड आई एम सिटिंग हियर on a place in Murshidabad, and suppose I have to transfer an amount to your account, let it be, just imagine, okay? So I am transfer an amount to your account, so without taking the information of your bank, without taking the information of your account number, without taking any details regarding your banking account, that is whether what is your account number, what is your IFS code, what is your MCIR code, I need nothing. I just need a QR code provided by you, then I will scan it and I will send the money. Okay, so this QR code will connect your banking account to my mobile phone virtually, but without revealing the information. So this is near field communication. Like तुम लोग देखे होगे, कभी कभी हम लोग वेबसाइट को देखते हैं तो वेबसाइट का, जैसे गूगल फॉर्म सबसे बढ़िया एग्जांपल तो मैंने यूपीआई ट्रांजैक्शन का दे दिया। नेक्स्ट है गूगल फॉर्म। देखोगे कभी कभी गूगल फॉर्म में इंस्टेड ऑफ द लिंक
they will provide the QR code. है कि नहीं? Yes, sir. तो QR कोड का फायदा क्या है? दैट इज इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, ठीक है, इसमें मेरा गूगल फॉर्म का इंफॉर्मेशन नहीं है. आई विल नॉट फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गूगल फॉर्म. इफ यू विल स्कैन द QR कोड, they will redirect you to a Google form link, and after opening the form, your identity, your form content will be revealed. So that is the main issue for near field communication, and this is for high security. तो IoT डिवाइस में ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन कैसे यूज होता है? सपोज तुम लोग वाईफाई कनेक्ट करते हो, ठीक है, डिवाइस से, तो देखोगे अभी जो नया डिवाइसेस आया है, दैट इज IoT कॉन्सेप्ट आने के बाद देखोगे वाईफाई दो तरह से कनेक्ट होता है. एक है सर्चिंग द वाईफाई और पेयर्ड द वाईफाई. पेयर्ड में भी दो तरह का होता है, एक है वाईफाई का IP एड्रेस और दूसरा है वाईफाई का QR कोड. So I am going to scan the QR code, and then I will connect the IoT device with that particular smart device. So NFC, as per its name suggests, near field communication. So its range is very low. That is, its operating frequency is 13.56 megahertz, and its distance is maximum distance is 80 meters. That means range of your mobile maximum, ठीक है, इससे बाहर तुम्हारा हो ही नहीं सकता. तो तुम्हारा अगर नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सपोज इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर डिवाइस विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, मुझे डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देना नहीं है, मुझे डिवाइस का प्रॉपर्टीज जानना नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट ओपन द स्कैनर एंड आई विल स्कैन द QR कोड एंड आई विल कनेक्ट दैट डिवाइस विथ माय controlling device, so that I can connect the IoT device with my smart devices. So that's why it is used, and its security is maximum. QR कोड में क्या होता है? You can't edit the QR code. Once it scanned, you can't edit the QR code. So that it is most secure, ठीक है, most secure communication. बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड रेंज. कि मैं अगर इस रूम पे मुर्शिदाबाद के एक जगह पे हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा QR कोड स्कैन नहीं कर पाऊंगा फिजिकल, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to take you have to send me the QR code, और मेरा जो डिवाइस है उसका रेंज 80 मीटर के अंदर होना चाहिए, जिसके स्कैनर के थ्रू I can scan, I can connect that IoT device with the controlling device. Obviously इसका डिस्टेंस भी 80 मीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है. So that is the main drawback. But इसका एक सबसे एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी. So that's why nowadays UPI transaction or contactless transaction, that is obviously monetary transaction, is one of the most popular digital transaction among all, ठीक है. So that is the wireless protocol. Now next is, ये समझ में आया? सर NFC. हाँ बोलो सर. बट इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से इन्वॉल्व होगा यदि कोई स्कैन किए तो? फ्रीक्वेंसी तुम्हारा इन द सेंस, तुम अगर स्कैन करते हो, ठीक है, तो देखोगे रेंज के हिसाब से हर एक जो पिक्सल रहता है, इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली तुम लोग इमेज प्रोसेसिंग है नहीं, इमेज प्रोसेसिंग में फ्रीक्वेंसी रहता है. देखोगे तुम्हारा रेंज अगर पास भी हो, 80 मीटर के पास भी हो, कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा स्कैनर जो होता है ब्लर्ड इमेज देता है, ठीक से स्कैन नहीं होता है. हुआ है कभी कि ठीक से स्कैन नहीं होता है? तो ठीक से तुम अपने एंगल को चेंज करते हो. दैट इज द फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा पिक्सल उस इंफॉर्मेशन को पकड़ेगा, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी मेन मैटर नहीं है कि NFC. हाँ बोलो सर. एक बट NFC कम्युनिकेशन होता है जो सर, एक जैसे NFC टैग होता है सर, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइप का ही वेव का यूज करके कम्युनिकेशन होता है. यहाँ पे भी रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, बट यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडर द फ्रीक्वेंसी। मैं जब बोल रहा था फ्रीक्वेंसी को उतना कंसीडर नहीं कर रहा था। इसका मेन है तुम्हारा रेंज, कि उस रेंज के अंदर तो सपोज। सर ये यदि हाँ बोलो। कम्युनिकेशन हाँ बोलो। सर ये यदि कम्युनिकेशन डिवाइस है तो इसमें कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यदि हम लोग वाईफाई का स्कैन करते हैं पासवर्ड से, तो ये तो वाईफाई प्रोटोकॉल का यूज करके कम्युनिकेशन करेगा, एनएफसी का यूज करके नहीं करेगा। तो एनएफसी तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट लेस हो रहा है ना। अगर तुम सपोज, मैं बोल रहा हूँ तुम दुकान में जा रहे हो, ठीक है, सपोज लेट इट भी एक दुकान में गए, यस। तो तुम्हारा वहां पे वो तुम्हारा क्यूआर कोड देता है, यस और नो। यस तो क्यूआर यस कोड को स्कैन करने के लिए कोई वाईफाई चाहिए? नो सर। मोबाइल नेटवर्क काफी है। ठीक है, क्या चाहिए? तुम्हारा रेंज चाहिए कैमरा का, नियर फील्ड। और कैमरा ये नहीं कि तुम रास्ते के इस पार में वो क्यूआर कोड दिखा दिया, रास्ते के उस पार से तुम कैमरा को जूम करके क्यूआर कोड ले रहे हो, होगा? नो सर। नो सर। दैट्स व्हाई दिस इज नियर फील्ड। उसको एकदम पास होना चाहिए। रेंज कितना है? मैक्सिमम 80 मीटर। 80 मीटर में वो काम करेगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम उसको ट्रेस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। दैट मींस तुम्हें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट मींस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में पिक्सल कैप्चर होगा। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कैप्चर होगा, दैट मींस द इमेज विल बी क्लियर। कभी कभी ये होता है कि हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो देखोगे नॉट डिटेक्टेड, स्कैनर नॉट डिटेक्टेड, रीस्कैन, ये करता है कि नहीं? हुआ है कि नहीं कभी भी कि तुम स्कैन कर रहे हो बट डिटेक्ट नहीं कर रहा है स्कैनर, तो रीस्कैन कर रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। दैट इज रियरेस्ट केस है। फ्रीक्वेंसी का उतना यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारा 80 मीटर और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसके लिए? अगर मैं सपोज आरएफआईडी किसी डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ, लेट इट बी तुम आरएफआईडी लिए, तो मैं आरएफआईडी से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मेरे गले में आरएफआईडी टैग है, लेट इट बी, हाँ डोंट टेक इट सीरियस, मेरे गले में आरएफआईडी का टैग है, and whenever I am going to enter in your classroom, ठीक है, कोई स्टूडेंट, एक मिनट, तो कोई स्टूडेंट क्या किया, क्लासरूम के 10 मीटर के रेंज के बाहर एक आरएफआईडी रिसीवर रख दिया। सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू क्रॉस दैट बाउंड्री, ऑल स्टूडेंट विल बी अलर्ट कि हाँ सर आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? आरएफआईडी जैसे ही ट्रेस करेगा तो वहां से मेरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा आईडी क्या है, और मैं कौन से क्लास में, मतलब कहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। दैट इज आरएफआईडी रिसीवर। यहाँ पे आरएफआईडी रिसीवर, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टर और यहाँ पे रिसीवर है, ये अलर्ट देगा कि सर हैज क्रॉस दिस रेंज, तो एवरी स्टूडेंट विल बी अलर्ट। ठीक है, तो आरएफआईडी में दिक्कत क्या है? इंफॉर्मेशन रिवील्ड हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एंड वेयर द आइडेंटिफिकेशन टर्म इज देयर, दैट मींस योर आइडेंटिटी विल बी रिवील्ड समहाउ। ठीक है, हो सकता है पर्सनल कोई आधार नंबर पैन नंबर ना हो, बट आइडेंटिटी रिवील हो सकता है। बट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू पेमेंट थ्रू क्यूआर कोड, तो तुम अगर मोबाइल पे स्कैन कर दो, तुमको क्या दिखाता है? बैंक अकाउंट नंबर दिखाता है रिसीवर का, यस और नो? यस सर। बैंक नेम अकाउंट नंबर दिखा। दिखाता है? नो सर, सर नेम दिखा रहता है। नेम वही दिखाता है जो यूपीआई नेम है। ठीक है, वो नेम से तुम रिवील नहीं कर सकते हो। अगर लेट इट बी, तो सपोज विकास तो अभी पूरे मोहल्ले में है, पूरे दुनिया इंडिया में है, तो विकास नाम का दो आदमी अगर अलग अलग क्यूआर कोड यूज कर रहा है, ओके, तो आफ्टर स्कैनिंग द डिवाइस विल शो यू द नेम विकास, नॉट द इंडिविजुअल आईडीज। ठीक है, उन लोगों का बैंक अकाउंट अलग है, तो बैंक अकाउंट तुमको नहीं दिखाएगा, आईएफएस कोड नहीं दिखाएगा, उस बैंक किस ब्रांच में है ये नहीं दिखाएगा। सो इफ सपोज लेट इट बी, मैं तुम लोगों का बैंक अकाउंट का क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ, यूपीआई आईडी का स्कैन कर रहा हूँ, तो आई विल नेवर नो योर अकाउंट डिटेल्स। तो अगर मुझे अकाउंट डिटेल्स पता नहीं है, अगर मुझे ब्रांच नेम पता नहीं है, अगर मुझे आईएफएस
कोड पता नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड आउट द अकाउंट डिटेल्स बाय यूजिंग योर नेम ओनली। यस और नो? Yes, sir. So that's why near field communication is very much secure, but one drawback is its range। और हम लोगों को पता है हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को रेंज और सिक्योरिटी दोनों मिल गया है, तो मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो रेंज और सिक्योरिटी दोनों दे। सो दैट्स व्हाई वी आर कंबाइनिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस पार्ट। सर हाँ बोलो। सर ये 80 मीटर रेंज सिर्फ आईओटी के डिवाइसेस के केसेस में होता है ना? हाँ, आईओटी डिवाइस अगर कनेक्ट करोगे तो 80 मीटर के रेंज में होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, हो सकता है कि 80 मीटर, जैसे मेरा नेटवर्क मोबाइल का टावर कैसे दिखाता है, इट विल लुक लाइक दिस। यस और नो? यस सर। दैट इज इट्स द मैक्सिमम रेंज इज दिस, कि अगर मेरा एक टावर भी रहेगा दैट मींस रेंज, मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ मेरा मोबाइल का रेंज बहुत ही मैक्सिमम एक्सटेंड में है, तो एक टावर दिखाता है। तो थियोरेटिकली आई कैन से one tower is one bar is enough to provide the network। but अगर देखोगे मोबाइल का जो बार है, नेटवर्क बार है, ये अगर एक में चला गया तो ऑब्वियसली योर कॉल विल बी डिस्ट्रप्टेड, योर नेटवर्क विल बी डिस्ट्रप्टेड। सो दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम 80 मीटर। तो 80 मीटर में कनेक्ट तो हो सकता है, बट प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, यस। नियर फील्ड नाम है, जितना नाम से पता चलेगा जितना पास रहेगा उतना वो ज्यादा काम करेगा। एसी रिमोट, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एसी रिमोट तुम्हारे सर के ऊपर ही एसी है और उसको रिमोट से तुम कैप्चर करोगे, जितना फ्रीली और जितना स्मूथली तुम ऑपरेट करोगे, अगर वही एसी को तुम वही प्लेस में है और तुम अपना पोजीशन धीरे धीरे रेंज को बढ़ाओगे, तो देखोगे दिक्कत और स्मूथनेस उतना घटेगा। ठीक है, so that is near field communication। next topic is data storage and analysis। data storage and analysis। so data storage and analysis में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कहां कहां पे मेरा डेटा स्टोर होता है पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आईओटी डिवाइस को अगर हम कनेक्ट करेंगे, लेट इट बी एक स्मार्ट एसी है, स्मार्ट एसी, और यहाँ पे मेरा स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, तो इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मेरा जो डेटा है कहां कहां पे स्टोर होगा, तो कहां कहां पे स्टोर होगा? कहां कहां पे स्टोर होगा? एक है वेंडर, जो मेरा एसी स्मार्ट एसी का सप्लाई देगा, दैट मीन्स जो स्मार्ट एसी प्रोवाइड करेगा, नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। वेंडर ये नहीं कि दुकानदार, ठीक है, दैट मीन्स स्मार्ट एसी जो मुझे प्रोवाइड करेगा और जिसके जो डिजाइन करेगा उस स्मार्ट एसी का सर्किट, उसके सर्वर में मेरा डिवाइस स्टोर होगा कि मेरा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, ये डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो नाउ एक है वेंडर, दूसरा है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जेशन, जो मेरा आईओटी क्लाउड प्रोवाइड करेगा, आईओटी क्लाउड, आईओटी क्लाउड प्रोवाइड करेगा। इन दोनों के पास मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगा। नाउ जहां पे मेरा स्टोर होगा वहां पे मेरा मेन क्या होगा? मेन कॉन्सिडरेशन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी, सेकेंड ऑफ ऑल लेस चांस, सॉरी, चांस ऑफ लॉसिंग स्टोर डेटा। देखोगे मोबाइल फोन हम लोग सब यूज करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सपोज
मैं मेरा मोबाइल फोन लगातार 2-3 दिन के अंदर फैक्ट्री रीसेट मांग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या वो मोबाइल फोन खरीदूंगा? यस और नो? सर कैन यू रिपीट प्लीज? सपोज हम लोग सब मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, सपोज मेरा जो मोबाइल फोन है, क्योंकि मोबाइल फोन इज द वन ऑफ द डिजिटल लॉकर नाउएडेज, ठीक है, वहां पे हम लोग का सब इंफॉर्मेशन रहता है, लाइक बैंकिंग से लेके शुरू करके मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तक मोबाइल में सेव, ठीक है। सो अगर मेरा सपोज फैक्ट्री रीसेट मांगेगा, that means format, that means all the data will be erased, all the stored data will be lost, then will I going to buy that mobile phone again? No, sir. नो सर। Why? वो सर Why? Why? सर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट्स है, जो भी डेटा मेरा मोबाइल में वो लॉस हो जा रहा, तो फिर तो उसको डेली डेली। रिट्रीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर 1 या 2 दिन मुझे बैठ के पूरा डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, और सपोज उसके अगले दिन फिर से फैक्ट्री रीसेट मांग लिया, so that's why I will choose a storage which has the less chance of losing the stored data, and next one is secure। अगर सपोज मेरा मोबाइल फोन में जो डेटा है, ऑब्वियसली मोबाइल फोन का डेटा कुछ मोबाइल के मेमोरी में स्टोर होता है, कुछ मेरा क्लाउड में स्टोर होता है, लाइक गूगल क्लाउड, ठीक है। गूगल क्लाउड में क्या होता है, वाट एवर आई एम स्टोरिंग इन द क्लाउड दैट विल बी स्टोर्ड, ठीक है, until and unless I will delete it। So now suppose मैं एक चीज तुम लोगों का क्लास का नोट में गूगल ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, एंड इफ दैट स्टोरेज एंड आई एम गिविंग द एक्सेस द डेटा टू द EC सेक्शन स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। सो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि वो सिक्योर है कि नहीं, अदर कोई डिपार्टमेंट का या अदर कोई पर्सन अगर उसको एक्सेस करेगा तो मेरा सिक्योरिटी इश्यू आएगा। सो दैट्स व्हाई डेटा स्टोरेज जो है, मुझे ऐसा डेटा स्टोरेज सिलेक्ट करना है जहां से मेरा सिक्योरिटी मोस्ट रहेगा, दैट मीन्स नो डेटा विल बी लीक्ड फ्रॉम दैट स्टोरेज, एज वेल एज नो डेटा विल बी लॉस्ट आफ्टर इट इज स्टोर्ड, ठीक है, स्टोरेशन के बाद वो डेटा मेरा लॉस नहीं होगा और लेस चांसेस रहेगा, ठीक है। सो ये दो चीज को मैं डेटा स्टोरेज के लिए यूज करूंगा। नाउ मुझे यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, एंड दैट चैलेंजेस इज, फर्स्ट वन challenges, first one, how I will store the data, how I will store the data, or which path will be followed by the data। सपोज मेरा गूगल में, ठीक है, तुम एक वेबसाइट ओपन कर रहे हो जहां पे तुम्हारा मेल आईडी फोन नंबर मांग रहा है, बट वहां पे मेरा बहुत सारा कुकीज आ रहा है, बहुत सारा ऐड आ रहा है, सो ऑब्वियसली मैं अगर अपना डेटा दूंगा तो एक बार सोचूंगा कि whether the site is secure or not। So that's why whenever we are going to give any information to website, we will see this protocol has been maintained or not, HTTPS, that means secure website है कि नहीं, then only I will give the data। Next, how I will give the data, whether it will connect, whether the data will be taken manually, or after giving my number they will retrieve my all data, so that is how the process। Next is, second, how the provider will acknowledge me। देखोगे कुछ कुछ साइट में या कुछ कुछ फॉर्म अगर मैं फिलअप कर रहा हूं तो हम लोग का मोबाइल में एक मैसेज आता है कि योर फॉर्म हैज सक्सेसफुली सबमिट और यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो मुझे देखना पड़ेगा जो मेरा स्मार्ट एसी है, इसको अगर मैं मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करूंगा
तो इसका वेंडर मुझे कैसे नोटिफिकेशन देगा कि योर फोन हैज बीन डिस्कनेक्टेड, योर एसी हैज बीन डिस्कनेक्टेड और नाउ यू आर कनेक्टेड। हम लोग सभी अभी ब्लूटूथ हेडफोन यूज करते हैं, तो देखो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा हेडफोन कनेक्टेड है? कैसे पता चलता है हेडफोन कनेक्टेड है? सब ब्लूटूथ में शो करता है कि ये डिवाइस कनेक्टेड है। ब्लूटूथ में शो करता है, दैट इज एक्नॉलेज करता है। अगर सपोज ब्लूटूथ में शो ना किया हो या कहीं पे कुछ मैसेज नहीं हो, कभी कभी जो बोट का हेडफोन यूज करते हैं देखोगे, अगर तुम जैसे ही हेडफोन कनेक्ट करते हो तो देखेगा योर हेडफोन इज कनेक्टेड और यू आर कनेक्टेड विद दिस हेडफोन, ऐसा एक मैसेज आता है, वॉइस मैसेज। और किसी किसी हेडफोन अगर कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा ब्लूटूथ आइकॉन जहां पे उसके ही नीचे ही लिखा है ब्लूटूथ डिवाइस हैज बीन कनेक्टेड। सो ये है एक्नॉलेज। तो मुझे ये देखना पड़ेगा वेंडर के एंड से और एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के एंड से कि आफ्टर एस्टैब्लिशिंग ईच एंड एवरी कनेक्शन दे आर गोइंग टू एक्नॉलेज द यूजर। अगर एक्नॉलेज नहीं करेगा तो ऑब्वियसली यूजर को पता नहीं चलेगा कि वो आईओटी डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा चैलेंज है। थर्ड चैलेंज रियल टाइम डेटा कैप्चरिंग। सपोज मैं एक स्मार्ट एसी के साथ कनेक्ट हुआ हूं, एक बार कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो अभी जो रिसेंट मेरा कनेक्शन है उसको बोलूंगा रियल टाइम, दैट इज लाइव कनेक्शन। सपोज 2 दिन बाद मैं फिर से कनेक्ट होऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि वेंडर और एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन मुझे पुराना डेटा तो नहीं दे रहा है, करंट टाइम में मेरा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं, उसका मेरा इंफॉर्मेशन या उसका एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं। तो ये चैलेंजेस वेंडर और एंटरप्राइज दोनों के तरफ है कि ईच एंड एवरी टाइम दे हैव टू बी एक्टिव। ठीक है, ताकि मैं कभी भी रात के 3 बजे भी अगर मैं एसी को कनेक्ट करूंगा तो वेंडर या एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन से मुझे मैसेज आएगा योर डिवाइस हैज बीन कनेक्टेड। सो दैट इज रियल टाइम डेटा कैप्चरिंग। तो अगर मैं ऑन स्विच ऑन का ऑप्शन दूंगा तो वो अभी काम करेगा, ना कि मैं नेक्स्ट जब कनेक्शन करूंगा तब वो काम करेगा। दैट इज रियल टाइम डेटा कैप्चरिंग। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? वेंडर और एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को ऑलवेज एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवरकम द इशू regarding सर्विस फेलियर। देखोगे कि आज से 3-4 साल पहले, ठीक है, तो अभी भी अगर कोई तुम आईआरसीटीसी का एप्स यूज करते हो, कोई एनीवन इज यूजिंग आईआरसीटीसी एप्स? यस सर। तो वहां पे देखो रात के 11 बजे के बाद अगर तुम आईआरसीटीसी एप्स में टिकट बुक करने जाओगे तो क्या मैसेज शो करता है? मेंटेनेंस सर्विस मेंटेनेंस। दैट इज तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, रात के 11 बजे सपोज इमरजेंसी हो गया, मुझे रात के 11:30 बजे टिकट काटना है, ठीक है, मुझे नेक्स्ट डे सुबह 1 बजे का ट्रेन पकड़ना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आई हैव टू ओवरकम द फेलियर इश्यूज, सर्विस फेलियर इश्यूज। दैट मीन रात के 11:30 बजे के बाद अगर मैं आईआरसीटीसी ऐप से टिकट काटूंगा तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस इश्यू के चलते मेरा टिकट इश्यू नहीं होगा। So that's why I am not going to buy any ticket through IRCTC online apps in between 11:30 तो I think 12:30 या 1 AM तक उसका रेंज रहता है, ठीक है। उस टाइम पे मैं कोई टिकट बाय नहीं करूंगा। तो ओवरऑल उस टाइम में मैं कह सकता हूँ कि आईआरसीटी अपना कस्टमर लॉस कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। बैंकिंग इशू में भी देखोगे, एसबीआई का ऑनलाइन बैंकिंग अगर मैं यूज करता हूं तो देखोगे रात के 12 बजे से आई थिंक सुबह 3 बजे तक उन लोगों का वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए रख लेते हैं। उस टाइम में ना ही कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, ना ही कोई तुम्हारा
मिनी स्टेटमेंट निकाल पाओगे, ऑनलाइन बैंकिंग उस टाइम बंद रहता है। सो सपोज IoT डिवाइस, तुम्हें ठंड लग रहा है एंड यू आर जस्ट डाउन द टेम्परेचर ऑफ AC, ठीक है। अगर मैं वेंडर होता, अगर वेंडर ये अनाउंस करता कि 10 बजे से 1 बजे तक मेरा सर्विस फेल रहेगा, तो सपोज अचानक ठंड लग रहा है रात के 11 बजे, तो तुम AC का टेम्परेचर बढ़ाओगे या AC को बंद करोगे? तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गोइंग टू डू दिस। So for that reason, vendor and the enterprise organization should take care of the failure issues कि किस किस कारण से मेरा सिस्टम फेलियर हो सकता है या सर्विस फेलियर हो सकता है, and they have to overcome the issues so that the devices can be connected to the IoT devices all the time, anytime, and whenever they or whenever you want to connect or you want to control the IoT devices through your smartphone, smartwatch, you can do this. So these are the 4 challenges regarding data storage and analysis. Okay, now we are going to study about the analysis of the data. So data analysis के लिए मुझे क्या करना चाहिए? First of all, to do the analysis for data analysis मुझे क्या करना चाहिए? पहला, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड IoT, दैट इज डेटा को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर्टिकुलर जिस सेक्शन में जिस डेटा का काम है उस डेटा को उस सेक्टर में देना है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। अगर मैं तुमको बोलूंगा एक ही साथ तुम आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, ठीक है, और उसी के साथ बीटेक भी करो, उसी का यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करो, उसी के साथ जेई का प्रिपरेशन करो, उसी के साथ इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन करो, विल यू डू दिस? नो सर। तो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कि हिस्ट्री कौन पढ़ेगा? जो आर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट है, ठीक है। कॉमर्स कौन पढ़ेगा? जो कॉमर्स बैकग्राउंड में है। साइंस कौन पढ़ेगा? जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस के पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर पढ़ता है, ठीक है। यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए यू नीड टाइम, एट दैट टाइम यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी अदर मैटर, सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक बंच ऑफ सेल है या बंच ऑफ ऑर्गेनाइज है जो पर्टिकुलर उसी टाइप के डेटा को ऑपरेट करता है। सो फॉर डेटा एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा। नाउ second one is distribution process. Next class I will discuss it in detail, distribution process. Now मैं ये distribution किस basis पे करूंगा? Suppose तुम EC student हो and you are very much interested in coding, so obviously I will not give you the data related to network theory, though it is in your syllabus. So distribution process में क्या होता है? Expertise. I have to find out which organization is expertise in that particular field. कि कोई organization तुम्हारा OTP generate करता है, they are expert in OTP, ठीक है, तो I am giving the data regarding OTPs. कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? QR कोड जनरेट करता है, सिक्योर QR कोड, तो आई एम गिविंग द डेटा टू दैट QR कोड जनरेटर ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? दे कैन कनेक्ट द डिवाइस विद IoT डिवाइस विदाउट एनी इंटरप्ट, ठीक है, और स्मूथली। सो आई एम गिविंग द डेटा रिगार्डिंग कनेक्शन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज IoT इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। IoT इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। सो डेटा एनालिसिस में मेरा क्या है कि IoT कब तक एक्टिवेटेड रहेगा और कब डीएक्टिवेट होगा, ये सब एनालिसिस जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस सेक्टर के थ्रू होता है उसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। वो क्या करता है? IoT इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल को एनालिसिस करता है। नेक्स्ट इज IoT and public cloud.
IoT एंड पब्लिक क्लाउड। IoT डिवाइस में से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे पब्लिकली क्लाउड में भेजना चाहिए या कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे प्राइवेट रखना चाहिए, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द दिस पार्ट। सो देखोगे तुम लोग सॉफ्टवेयर में, अगर तुम लोगों का कोई रिलेटिव है तो देखोगे, या कोई दोस्त है तो देखोगे, वहां पे एक पोस्ट रहता है डेटा एनालिस्ट। यस और नो? जूनियर यस डेटा सर। एनालिस्ट, सीनियर डेटा एनालिस्ट, STA, ठीक है, सीनियर डेटा। यस सर। हाँ, तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? पर्टिकुलर देखोगे, तो अगर तुम्हारा 3-4 दोस्त है जो एक ही पोस्ट में है, STA, दैट इज सीनियर डेटा एनालिस्ट, और उन लोगों का काम एक नहीं है। कोई डेटा एनालिस्ट करता है कि लास्ट ईयर मेरा कंपनी का सेल के ऊपर डेटा एनालिस्ट करता है, ठीक है। कोई एनालिस्ट करता है कस्टमर फीडबैक के ऊपर, कोई एनालिसिस करता है कि कौन सा कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री के ऊपर एनालिसिस करता है, कोई कस्टमर डिससेटिस्फैक्ट्री के ऊपर एनालिसिस करता है। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एक्सपर्टाइजेशन, I am going to distribute the data in these 4 sector to be analyzed, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग डिटेल इन दिस पार्ट, एंड आफ्टर दिस यूनिट आई थिंक तुम लोग का ये आफ्टर दिस यूनिट, ठीक है, ये 5th यूनिट है, और इस यूनिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, IoT एप्लीकेशन में जाएंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे IoT किस किस सेक्टर में एप्लीकेबल है, ठीक है। सो दैट मच फॉर टुडे। एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडे सेशन? हाँ बोलो। सर बेसिकली हम लोग डेटा एनालाइज में क्या करते हैं? डेटा एनालाइज में हम लोग करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज मैं तुम लोगों का जो डेटा एनालाइज करता हूँ, किसके बेसिस में, दैट इज मैं तुम लोगों का डेटा कनेक्ट करता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट का अटेंडेंस ज्यादा है, कौन स्टूडेंट इरेगुलर है, कौन रेगुलर है, ठीक है। तुम लोगों का क्लास का परफॉर्मेंस क्या है, तुम लोगों का इंटरनल का परफॉर्मेंस क्या है, सेमिस्टर का परफॉर्मेंस क्या है, ये सब डेटा है। डेटा इज एवरीथिंग, ठीक है, एवरीवेयर देयर इज अ डेटा, ठीक है। तो ये डेटा एनालिसिस का काम क्या है, वो सारे डेटा को कलेक्ट करता है। और नाउ कलेक्ट करने के बाद क्या है, अगर मैं बोलूंगा कि तुम डेटा कलेक्ट करो, पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करो मेरे बारे में, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कलेक्ट इट, ठीक है, थ्रू माय फेसबुक अकाउंट, थ्रू माय व्हाट्सएप, थ्रू माय फ्रेंड सर्कल, थ्रू माय कॉलीग सर्कल, मेरा जो पुराना स्टूडेंट्स है, जो करंट स्टूडेंट्स के थ्रू तुम मेरा डेटा कलेक्ट कर लिए। नाउ करना क्या है, इसको खाना है या पहनना है या साइड में रख देना है। नाउ इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हम अपकमिंग परफॉर्मेंस, ऑलवेज डेटा इज एनालाइज टू मॉडिफिकेशन और टू बेटरमेंट ऑफ द डिवाइस। अगर मैं डेटा एनालिसिस करता हूं रिगार्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो मैं अगर बोलूंगा कि मैं स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के ऊपर डेटा कलेक्ट करूंगा, तो मैं देखूंगा मेरा कितना स्टूडेंट सेटिस्फाई है मेरे क्लास से, ठीक है, हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड, and how I will improve myself to raise the limit of the satisfaction, ठीक है, रेज द बार ऑफ द सेटिस्फेक्शन, कि आज मेरा स्टूडेंट सेटिस्फाइड है कि हाँ सर ठीक ठाक टाइम में क्लास लेते हैं, ठीक है, 1 घंटे का क्लास 1 घंटा 5 मिनट जाता है, या 1 घंटा का क्लास 55 मिनट जाता है। तो मैं देखूंगा इसको कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि मेरे पास सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टाइम है, बट सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू कंटेंट नहीं है, तो आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटेंट, ठीक है। आज मैं अगर डेटा एनालिसिस करूंगा स्टूडेंट डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर, कि सर ठीक से पढ़ाते नहीं है, समझाते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम सर इज सेइंग हियर, इधर उधर का बातें शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरा स्टूडेंट जो है यहाँ से डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो एनालिसिस करूंगा कि मैं कैसे इसको ओवरकम करूं। तो दैट इज द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का यही काम होता है, एनालिस्ट का यही काम होता है कि प्रीवियस जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करो, उसका एक ग्राफ बनाओ, और ग्राफ को देखो इंक्रीमेंटेड ग्राफ है या डिक्रीमेंटेड ग्राफ है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू विल मेंटेन द लिनियरिटी ऑफ द ग्राफ, ठीक है। गॉट इट? यस सर। Okay. Okay, that much for today. Next, I think we have class tomorrow, and then we will discuss these 4 topics. Okay. थैंक यू सर। Okay. So now I'm going to Thank end you, the sir. session.